निवारण सुनिश्चित कराना है। इस विशेष अभियान की संपूर्ण रूप and Joint Secretary Shri Rupjyoti Sen Gupta ji, distinguished colleagues, Deputy Managing Director SBI, senior officials from CBA, colleagues from CBDA, PCBA Allahabad, Bharat Pensioner Samaj Association, the India Services, and friends from media. The Honorable MOS will be joining us at 1:15, 1:20. He is in Parliament in the Lok Sabha discussions. So we will commence the launch functions once he reaches. But I will brief you on what the government's policy in terms of how the campaign is being suggested. So we'll take you through a brief presentation, after which we can have comments from the individual pensioner associations and also nodal officers for participation. So the special campaign for redressal of family pension grievances, next please, has been taken up as part of the Department of Pension and Pensioner Welfare's 100-day agenda, and it seeks to improve the ease of living of pensioners. So for which we are taking a 100-day campaign. We also will be taking up delivery of services at the doorstep, which is the DLC campaign in collaboration with IPPB, State Bank of India, and all pension disbursing banks. And this will be from November 1st to November 30th. And the 100-day campaign for grievance redressal of family pensioners is being taken up from 1st July to 31st July, for which we seek support from all 46 ministries, as also all the pensioner welfare associations for participating. Next, please. The major policy reform that is envisaged as part of the 100-day agenda is the integration of Bhavishya with EHRMS, and we have a separate event for that. It's a major step that involves form simplification, merger of forms, and amendments in 6 pension rules. So, for improving pensioners' welfare. The DLC campaign that was taken 1st to July 31st, and we have identified 1,891 cases from 46 ministries and departments that will be taken up, and these are on the CPengram portal that have been identified. Next, been shared with all the nodal ministries. I'm sure all of you have gone through the cases that has come about and I'm sure a daughter who is unemployed, grievances, pensioners can upload on the CPengrams portal. They can also use the Pension Seva app of SBI. Holders are firstly the pensioner. Ministries and departments can also disseminate success stories through feeds, through PIB statements. In the last pension adalat on 13th of June 2023, 22nd of February pension adalat on May 17, 2023, Yashodaben Devi was receiving pension. गंभीर अतिथियों से अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय जी के अभिनंदन में सभी महोदय जी का साथ दें। पुनः बहुत बहुत बधाई। आप सबके सहयोग से इस अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न करने की आशा करते हैं। कुटुंब पेंशन भोगियों के सर्वांगीण कल्याण की ओर ये हम सबका सम्मिलित, सशक्त और सुदृढ़ कदम होगा। ये हमारा परम सौभाग्य है कि लगातार तीसरी बार हमें माननीय मंत्री महोदय जी के गौरवशाली नेतृत्व में कार्य करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। शायद इन्हें लगा कि सब कुछ आप ही बोल गई तो मंत्री के लिए बोलने नहीं रहेगा, तो लगता है गुड ब्यूरोक्रेट
Secretary ARPG, Mr. Srinivas, who is now a veteran in this department and he was one of the senior most civil servants in the government of India. DG BSF, Mr. Agarwal, Dr. Nitin Chandra Dubey Sahab, Sunil Gupta, all the senior officers of the banking sector, pensioners. सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि why we are launching this campaign. You see, because it is not that we are doing any charity or benefit to this section of society which belongs to pensions. We have a huge stake in them. आप ये ना सोचिएगा कतई भी कि कुछ आपके लिए सरकार कर रही है. ये सरकार इसलिए कर रही है कि ये राष्ट्र निर्माण में अब अनिवार्य बन गया. इसके प्रकार कोई विकल्प नहीं है हमारे पास. The number of pensioners today exceeds the number of working employees in government, which is quite unlike what it was about 3 decades back. अगर आपके 45-50 लाख वर्किंग एम्प्लॉइज थे तो पेंशन उससे कम थे. और एक बार स्कोवा की बैठक में बहुत लंबी जब चर्चा चली और सबको कोई ना कोई शिकायत थी तो आखिरकार उन्होंने मुझे पूछा कि उसका समापन कैसे करना है. तो मैंने कहा सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आप में इतनी ऊर्जा है कि आपने इतनी सारी शिकायतें हमारे आगे रखी, क्योंकि इस देश ने वो भी ज़माना देखा है कि बहुत सारे हमारे सज्जन बिना फेयरवेल पार्टी लिए हुए सेवानिवृत्त होने से पहले ही धरती से कूच कर जाते. So the lifespan has increased. So all these things are interdependent. At the time of independence, the lifespan of an average Indian was hardly 50-55 years. Yes, retirement age was 55. Many of us did not live long enough even to get a farewell party. Now the lifespan has increased. Currently it is gone up to 55-66, is progressively on the rise. So we have a huge population of plus 60s who are officially retired, but otherwise neither tired nor retired. So when they superannuate formally from the government service, they are at the peak of their expertise, the peak of their experience. They are well versed with the sector, the field which they are working. और मेरा हमेशा ये आग्रह रहा है कि हमारा दायित्व है किस प्रकार से उनकी अनुभव को और उनके एक्सपर्टाइज को राष्ट्र निर्माण के कार्य में स्ट्रीमलाइन करके उपयोग में लाया जाए. वरना क्या होगा कि ऊर्जा भी है, समझ भी है, काम कुछ नहीं है, तो कोई RTA एक्सपीरियंस बन जाएगा तो वो भी इनके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि विभाग के बारे में सब कुछ पता होता है. But that is on the lighter side. But on a serious note, we can certainly use this as a very important section. And I have been always advocating, even to the other ministries, that you use them in your advisories, not the mercy of the other. और आज basically this is not per se an issue related to pension. This has a huge socio-economic impact also. अब कहने को हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि this is a young country. We are because 70% population below the age of 40. What I was telling even the doctors that day, I said the graph is biphasic. 70% may be below 40, but the oldies are not ready to quit. So we are still around plus 60. That means the absolute number has increased. So the absolute number of plus 60 was very minuscule at the time of independence. Now that is also increased. So it's now the question in the future would be how to also sustain financially, because it's a huge exchequer on the state even to pay the pensions. कई महीने तक आपने देखा सैलरीज नहीं हो पा रही. Financial cut to आपका permission में भी आ जाएगा. And if God forbid that happens, because this section is more needy compared to the others, many of others, so it will be a very unfortunate situation. So उसको go ahead with that. Particularly, I am personally satisfied as far as some of the decisions regarding family pension in women is concerned. अब पहले क्या था कि डिवोर्स डॉटर को फैमिली पेंशन नहीं मिलता था, तो शर्त ये थी कि वो जाकर के अदालत से कचहरी से जजमेंट आए. आपने देखा कि कचहरी में 20-25 साल डिवोर्स के केस, बहुत बड़े बड़े VIP भी अटके हुए, रोज उनकी खबरें आती हैं पास.
तो भला एक आम नागरिक और आम एक बेटी होगी तो उसको कब मिलेगा न्याय? तो हमने केवल ये शर्त रखी कि वो अपना अगर पिटिशन फाइल कर देती है तो दैट विल बी टेकन एज एन एविडेंस सो दैट नोबडी ऑल्सो हैज द अपॉर्चुनिटी टू मिसयूज दैट प्रोविजन। इसी तरह से अगर कोई कर्मचारी लापता हो जाता है तो हमारे यहाँ शर्त थी कि फैमिली पेंशन उसकी धर्मपत्नी को, उसके नेक्स्ट ऑफ किथ एंड किन को तभी मिलेगी जब 7 बरस गुजर जाए या फिर उसकी कहीं से लाश मिल जाए। अब लाश लाना भी उसके बस में नहीं और 7 बरस गुजरने के, पर हमें ये लगा कि वही अंतराल है जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है परिवार को, तो हमने वो भी हटा दिया। तो फाइनेंस की ओर से ये सवाल आया कि साहब अगर वो प्रकट हो गया तो क्या होगा, वो जो हमारा हमने पेंशन दे दी जाएगी, तो हमने कहा कि उसकी भी हम अकाउंट कर सकते हैं। इसी तरह से और ख़ास तौर से जो वायलेंस स्ट्रक एरियाज़ हैं या लेफ्ट वायलेंस हो रहा है छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर अब तो थोड़ी वारदात कम हो गई। पहले अक्सर आप अखबारें पढ़ते थे सप्ताह में एक आदमी कहीं कोई किडनैपिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। दूसरा इसी तरह से था कि अगर कोई मर जाए 7 साल से पहले, 10 साल से पहले, तो उसकी फैमिली को पेंशन नहीं मिलता था। वो भी हमें लगा कि न्यायपूर्वक नहीं है, क्योंकि उससे पूछा तो है नहीं मरने वाले से, या तो उसको चॉइस दे दी जाए कि तो कब मरना, या उसको बता दिया जाए कि भैया तो 7 साल 10 साल से पहले मरेगा तो तेरी फैमिली को पेंशन नहीं मिलेगी, तो हमारा मरना डिले कर देगा। जब आपने उसको वो चॉइस नहीं की तो आपको क्या अधिकार है कि आपकी फैमिली को डिप्राइव करें? एंड पर्टिकुलरली व्हेन एन एम्प्लॉय डाइज even before having put in a service of 5 or 10 years, which means he must have been very young. So a young widow left behind and a young child or whatever. So all the more तो हमने उसको भी खत्म किया। जो बदलता हुआ सोशल पर्सपेक्टिव है उसमें फैमिली पेंशन टू चाइल्डलेस विडो is another very revolutionary step, rather unorthodox, because certain things we hesitated talking about, we have given up those taboos. अगर किसी रीमैरिज करती है कोई हमारी विडो और उसको भले ही दूसरा सोर्स ऑफ इनकम मिल भी जाए, बट इफ इट इज लेसर देन द फैमिली इनकम देन शी फैमिली पेंशन देन शी स्टिल एंटाइटल्ड, बिकॉज अदरवाइज वी वुड बी डिस्करेजिंग रीमैरिज ऑफ अ विडो। तो इसमें काफ़ी सारी सोच के साथ ये रिफॉर्म्स लाए गए, जिसमें सोशल एस्पेक्ट भी है, फाइनेंशियल भी है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो इंट्रोड्यूस किया गया, मुझे व्यक्तिगत लगता था कि बड़ा मानवीय है कि यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अलाइव। अब डेथ सर्टिफिकेट तो हम देते हैं अस्पतालों में, लेकिन जिंदा होने का सर्टिफिकेट किसी से मांगना, और कई हमारे ऐसे बुजुर्ग थे कि दे फाउंड इट डिफिकल्ट इवन टू ट्रैवल टू अ डॉक्टर, टू रीच अ डॉक्टर। तो हमने पहले उसको डिजिटलाइज किया। मैं तो समझता था कि उसको ख़त्म ही कर दिया जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे बैंक से ही एक हमारे साथी थे, उन्होंने आके समझाया कि उनका आप इतना सादगी में ये निर्णय ना लीजिए। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक ऐसा केस हुआ कि कोई ऐसे सपुत्र थे जो 6-7 साल तक अपने स्वर्गवासी पिता के नाम पर पेंशन लेते थे। उन्होंने कहा था कि पिताजी रोज़ रोज़ आपको क्या तंग करना, तो चेकबुक पर एक ही बार साइन करवा दी। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया, वो मेरे वैसे ही जानकार थे सरकार में आने से पहले, तो कहता ये आप जिस नीयत से और जिस सादगी से निर्णय ले रहे हैं, तो संसार में तो हर भांति के लोग हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ अब कुछ रहना चाहिए। तो फिर हमने उसको डिजिटल किया, जो आजकल हमारे पास डिजिटल की भी व्यवस्था है, विकल्प है। और आगे चल करके जब ये लगा कि बायोमेट्रिक में फ़र्क आया, तो फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, आप अपने मोबाइल से ही ऐप से ऐसे कैमरे में देखिए और 1 मिनट के भीतर आपको बैंकिंग में आपका सर्टिफिकेट पहुंच जाता है। मुझे लगता है लगभग 20 लाख हमारे ऐसे पेंशन जो इसका भी लाभ ले चुके हैं। और आज ये जो आप कंप्लेंट्स का सिलसिला, हमारे पास सीपी ग्राम में एक अलग से एक व्यवस्था थी सरकारी कर्मचारियों की, उसका काज भी श्रीमान श्रीनिवास जी ही देखते हैं। तो उनको उसका भी अनुभव था। उसी की तरफ पर CPN ग्राम आ गया कि पेंशनर्स के लिए भी उसी तरह का एक पोर्टल बनाया जाए, उसमें सभी राज्य भी जुड़ जाएँ और उसकी टाइमलाइन फिक्स हो। जैसे CP ग्राम में भी लगभग 95-98% उसका निवारण प्रति सप्ताह रहता है,
और उसके अनुभव से हमने और बहुत कुछ सीखा। उसमें अब हमने ह्यूमन एंगल भी डाल दिया, क्योंकि होता ऐसा था कि डिस्पोजल हो जाता था लेकिन व्यक्ति